Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. Hello friends, welcome you all to the analysis of UPSC Prelims previous year's question paper. Today we are discussing the prelims question paper of General Studies 1 for 2011. Now question number 51, it is related with a wild animal. A sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? Now first option is Indian wild buffalo. Now see, basically about Indian wild buffalo, it is found in central India. So that particular portion, saline area, could be the part of Kutch region, Kathiawar region, or the regions of Rajasthan. So first option would be there. Second, Indian wild boar. Indian wild boar is also called as Andamanese pig. So it is also not threatened. So second, C option is also gone. Third, Indian gazelle. It is also called as chinkara. Now one important thing, the population of chinkara is very stable. It is mostly found in the regions of Rajasthan. So chinkara or Indian gazelle is not also the option. The most important option is Indian wild ass. And on this Indian wild ass, you can find many questions in previous year's papers also. So the correct option is Indian wild ass, found in Kutch Kathiawar region, Run of Kutch, the most important region where this particular animal is being found. Then question number 52, sorry. Also one important thing, this Indian wild ass is also known as khur. This khur is also the another alternative name for Indian wild ass. Question number 52. La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? Now, some basic information. El Nino is also known as little boy, or it is also known as Christ child. What is El Nino? It is basically warming of ocean temperature on the coasts of Peru, that is in central and eastern tropical Pacific Ocean, that is on the coast of Peru. So basically, El Nino is related with lesser rainfall or drought-like condition in India. Now we will try to understand the options. First option, La Nina is reversal of El Nino. La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by usually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. Now here El Nino is correct. What? That it is characterized by unusually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. But La Nina, at the same time, La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean. Here it is warm ocean temperature. So first option is wrong. Second option, El Nino has adverse effect on southwest monsoon in India. Yes, it is true. El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect. So no. Whenever La Nina जब होता है तो उस टाइम इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होती है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हर सेंटेंस में आधा सेंटेंस सही दिया है, आधा सेंटेंस गलत दिया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए. आपको लगे अरे आधा सेंटेंस तो सही है और दूसरा सेंटेंस अगर पता ना हो तो आप सोचते कि वो भी सही होगा, एंड यू पुट मार्क बोथ 1 and 2. सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, द करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 nor 2. देन question number 53. The tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. It is also famous as Cornwallis Code. The reason for this is normally traced to which of the following provision? Now this is very interesting. Why there was increased litigation? So first, making Zamindar's position stronger vis-a-vis the Rayat. So a Rayat was not that powerful that they will go for litigations against Zamindar. So first option is mostly wrong. Making East India Company as overlord of Zamindars. So Zamindars were also under the pressure, so it was least preferable.
Making judicial system more efficient. If judicial system is made more efficient, obviously it will not lead to increase in litigation. So C option is gone. None of the A and B is correct. Why? Because Cornwallis abolished court fees. This was very, very important judgment taken by Cornwallis, and this abolition of this fees was responsible for increased litigation. Clear? So Lord Cornwallis had abolished court fees and it was responsible for increased litigation in this region. So it was the 53rd question. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन रिलेवेंट ना लगे, फिर भी आप A, B या C में ही चूज करते हो. ऐसा नहीं करना है, आपको वहां पे ध्यान देना है. और जब आप कोई भी वाइसरॉय पढ़ रहे हो, कोई भी गवर्नर जनरल पढ़ रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर कि वहां पे उनका जो लैंडमार्क जजमेंट है विच हैज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, वो आपको ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ द ए बी सी एंड करेक्ट. यहाँ पे ध्यान में रखिए, Cornwallis abolished court fees which led to increased litigation. Then question number 54. Which one of the following observation is not true about Quit India Movement 1942? पहला ऑप्शन है इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. तो यहां पे ध्यान में रखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज अ ब्लंडर. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज मार्ड बाय वाइड स्प्रेड वायलेंस. यहां पे ध्यान में रखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था. एंड वायलेंस यह सबसे कॉमन फीचर था क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा. सो बाकी तीनों भी ऑप्शन सही है. इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. दूसरा, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये भी सही है. तीसरा, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, ये भी सही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप इस प्रकार के ऑप्शन सर्च करना ट्राई करोगे, वहां पे आपको जो ब्लंडर स्टेटमेंट लगता है, जो वहां पे फिट नहीं होता है, उस प्रकार का ब्लंडर स्टेटमेंट आपको सर्च करके वहां पे आंसर करेक्ट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 55. Which among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in 19th century? It is very common question. अभी आप एक बात ध्यान में रखिए, यूपीएससी जब प्रीलिम्स में सवाल पूछती है तो पीएचडी लेवल के सवाल नहीं पूछती है. आप जब कॉमन में कोई भी स्पेक्ट्रम या कोई भी इंडियन हिस्ट्री का किताब पढ़ोगे, आपके ध्यान में आ जाएगा कि जितने भी हिस्ट्री के सवाल पूछे, दे मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, और हम उन सभी सवालों में सिली मिस्टेक कर जाते हैं और हमारा प्रीलिम्स रह जाता है. ध्यान में रखिए, कोई भी सब्जेक्ट में प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पीएचडी करने से पहले आपको वहां पे जो बेसिक कंसेप्ट है, वहां पे जो बेसिक चीजें, वो आपको अच्छे से पढ़नी है. तो यहाँ पे देखते हैं पहली चीज, क्यों ट्राइबल इंसरेक्शन हुआ था, क्यों ट्राइबल का रिवोल्ट हुआ था, क्यों ट्राइबल वेर अगेंस्ट द सिस्टम. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट. तो बेसिक चीज ध्यान में रखिए, ट्राइबल प्रोडक्ट पे उस टाइम कोई भी जो टैक्सेशन था वो बहुत ज्यादा हिक्टिक नहीं था. ट्राइबल लोग वहां पे टैक्सेशन पे नहीं करते थे, और जो कुछ भी पे किया जाता था वो फार्मर से या रैयत से लिया जाता, ट्राइबल से नहीं लिया जाता था. सो फर्स्ट वाज अ रॉन्ग थिंग. इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरिया. नहीं, बेसिकली ट्राइबल्स हैड नो रिलीजियस ओरिएंटेशन. सो उस वजह से 19th सेंचुरी में मिशनरीज वहां पे जो काम करते थे वो बेसिकली डेवलपमेंटल फंक्शन था, हेल्थ के हिसाब से था. सो मिशनरीज की वजह से भी वहां पे कोई भी ट्राइबल्स का अपराइजिंग नहीं हुआ था. लेकिन थर्ड इज करेक्ट. नेटिव जो आसपास के एरियाज में से आए हुए जो मनी लेंडर्स थे, दिक्खुस थे, उनकी वजह से उनका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और जो कोई भी चीजें हुई थी, उनका स्लेविशनेस जो जीना हुआ था, उसकी वजह से वो इंसरेक्शन हुआ था. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. राइज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, traders and revenue farmers as middlemen in tribal areas was the most important reason. And the complete disruption of old agrarian order of tribal communities, ये भी reason नहीं था. They had no objection for against Britishers. They had the most important objection against the money lenders, traders and revenue farmers who encroached on their land. And this is very commonsensical answer. Everyone should know this answer. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56. India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. अभी आप अगर साउथ इंडियन मूवीज देखते हो तो आपको उसमें भी पता होता है कि साउथ इंडियन मूवीज में हर कोई गुंडा होता है, जो डॉन होता है, वो या सिंगापुर में होता है या मलेशिया, थाईलैंड, यही साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में होता है. या साउथ ईस्ट एशिया में का जो भी हीरो होता है, जो पढ़ने जाता है,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही गोज फॉर द स्टडी आइदर इन ऑस्ट्रेलिया और इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन. व्हाई? दीज आर कल्चरल लिंक्स दैट कैन बी फाउंड इन प्रेजेंट डे ऑल्सो. So, for this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? They are asking most convincing explanation. So, first, as compared to other countries, India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval time. Yes, ये सही है. हमारा जो shipbuilding industry था, it was very good one. So, A option is correct हो जाएगा. दूसरा, the rulers of southern India always patronized traders, Brahmin priests and Buddhist monks in this context. So ये भी सही है. So correct option is D. Both A and B are convincing explanation. Monsoon winds across Bay of Bengal facilitate sea voyages. ये geographically भी correct नहीं है और ये historically भी सही नहीं है. So correct option is D. Both A and B are the convincing explanations in this context. Question number 57. What is the difference between Bluetooth and Wi-Fi devices? ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है. यहाँ पे आपको दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए और ये दोनों भी टेक्नोलॉजी उस टाइम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में थी. दैट्स व्हाई यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट. आपको सिर्फ पढ़ के बताऊंगा. Bluetooth uses 2.4 gigahertz radio frequency band, whereas Wi-Fi can uses 2.4 gigahertz or 5 gigahertz frequency band. सही है. दूसरा, Bluetooth is used for wireless local area network only, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network only. So यहाँ पे दोनों भी statements correct है. तीसरा statement सही नहीं है. When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in line of sight of each other. ये not necessary. But when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in line of sight of each other. ये दोनों भी सही नहीं है. ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है लेकिन पहले वाला उसमें का स्टेटमेंट सही नहीं है. सो अगर सी गलत हो जाएगा तो ये पहले दो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 58. विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड. यस, ये सही है क्योंकि आप क्या कर सकते हो जब आप माइक्रो इरिगेशन का यूज कर सकते हो. माइक्रो इरिगेशन में दो चीजें आती है. एक है ड्रिप इरिगेशन, दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन. तो ये दोनों चीजों में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टू द रूट आप इरिगेशन दे सकते हो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है तो बी ऑप्शन चला जाएगा. देन दूसरा स्टेटमेंट, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग. नहीं, ड्राई लैंड फार्मिंग में ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन के अलावा बहुत सारी चीजें इरिगेशन के लिए यूज की जा सकती है. लाइक अगर ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन भी ना हो तो भी दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर रेन फेड फार्मिंग. सो सिंस यहाँ पे ओनली वर्ड आया है इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग. दिस वर्ड ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रॉन्गनेस ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो जब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 1, 2 एंड 3 ऑप्शन भी चला जाएगा. देन क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट थर्ड स्टेटमेंट. इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड. सही है. अगर हम ड्रिप इरिगेशन यूज करेंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उस वजह से हम जो बोरवेल यूज करते हैं, हम जो ट्यूबवेल यूज करते हैं, हम जो वेल्स यूज कर सकते, उसका जो वाटर लेवल हम यूज करके वाटर टेबल नीचे जा रहा है. So due to this micro irrigation, water can be used more efficiently, more effectively, and this will help in checking the receding of water table. So 1 and 3 are the correct statement. Question number 59. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. मतलब भारत से जो कोई भी संपत्ति इंग्लैंड चली गई उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है. तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ में होम चार्जेस यह सबसे बड़ा फीस का मुद्दा था जो भारत से इंग्लैंड चला जाता था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस? मतलब होम चार्जेस में क्या क्या आता है? फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द ऑफिस, इंडिया ऑफिस इन लंदन. सही है. फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया. ये भी करेक्ट है. फंड यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. सो 1, 2 एंड 3 ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है. इसमें ध्यान में रखिए जब
होम चार्जेस थे, तो अदर देन होम चार्जेस और कौन से चार्जेस थे? एक होम चार्जेस था, दूसरा था सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, तीसरा था इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये 3 से 4 प्रकार के चार्जेस इंडिया से लिया जाते थे जो इंग्लैंड में सेंड किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्राउट। यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे जितने भी सवाल आते हैं, महात्मा गांधी के जो सबसे पहले 4 मूवमेंट थे, जो सबसे 4 पहले सत्याग्रह थे, तो चारों पे क्वेश्चन आता है, उनके टाइमलाइन पे क्वेश्चन आता है, उनका पर्पस क्या था उस पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट अहिंसावादी मूवमेंट, ये सभी पे सवाल आता है। तो आपको चारों भी जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने किए, तो सब पे आपको प्रिपरेशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 61, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वेज। मतलब बायोडाइवर्सिटी किस किस प्रकार से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हेल्प करती है? सबसे पहला है सॉइल फॉर्मेशन, करेक्ट है। अगर पहला करेक्ट है तो बी ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, अगर प्लांट्स होंगे, अगर ग्रास होगा, इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड सॉइल इरोजन। सो सेकंड स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो 1 and 4 चला जाएगा। थर्ड, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यस इट इज वेरी ट्रू। Recycling of waste is being made by biodiversity. Detrivorous or detrificus are responsible for recycling organic waste. So correct option is 1, 2, 3 and 4. इस प्रकार के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर 1, 2, 3 and 4 होता है, लेकिन ये स्टेट सर्विसेज में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62, aspartame is an artificial sweetener sold in the market. It consists of amino acids and provides calories like other amino acids. Yet it is used as a low calorie sweetening agent in food items. What is the basis of this use? देखिए, aspartame is as sweet as table sugar, but unlike sugar, it is not readily oxidized in human body due to lack of requisite enzyme. दूसरा, when aspartame is used in food processing, the sweet taste remains, but it becomes resistant to oxidation. अभी देखो, दोनों भी ऑप्शंस जो है, ये दोनों ऑप्शन का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकलता है, तो दोनों आंसर नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ भी पता ना हो उस केस में, अगर आपको एस्पार्टम के बारे में सब पता है, तब तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर पे चला जाना है। लेकिन अगर आप एस्पार्टम के बारे में पता नहीं है तो आपको आंसर पे कैसे आना है? दोनों भी ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, सो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। एस्पार्टम इज एज स्वीट एज शुगर, नहीं। अगर आप पढ़ोगे, मैं एस्पार्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्पार्टम ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर, सो दैट्स व्हाई लोअर क्वांटिटी ऑफ एस्पार्टम इज सफिशिएंट। सो करेक्ट आंसर इज डी। एस्पार्टम इज सेवरल टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर, हेंस food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories on oxidation. Oxidation is responsible. So what is D is the correct answer. What is explanation? Aspartame is an artificial non-saccharide sweetener. Remember, it is not a sugar, non-saccharide sweetener used as a sugar substitute in some food and beverages. यहाँ पे ध्यान में रखिए, aspartame में beverages में भी यूज किया जाता है, ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है। It is approximately 200 times sweeter than sucrose or table sugar. Due to this property, even though aspartame produces 4 kilocalorie of energy per gram when metabolized, the quantity of aspartame needed to produce a sweet taste is so small that its calorific contribution is negligible. मतलब अगर उसका कैलोरी कंटेंट ज्यादा भी हुआ तो भी ये 200 टाइम्स मोर स्वीट है शुगर से। तो अगर आपको जितना शुगर लगता है उससे 200 टाइम्स कम क्वांटिटी में एस्पार्टम भी लिया तो भी यू विल गेट अ टेस्ट जस्ट लाइक अ शुगर। एंड सिंस आप कम एस्पार्टम यूज करते हो, इसलिए आपका कैलोरी कंटेंट भी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड विद द यूज ऑफ एस्पार्टम व्हिच इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। Question number 63. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ
कॉमन्स, ये स्टेट का क्वेश्चन है। टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द इंपीरियल जुडिशरी। देखिए 1893 में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इंडियन पर्सन को इंग्लैंड की जुडिशरी में आना चाहिए, इंपीरियल जुडिशरी में कोई भी नहीं सोचेगा कि इंडियन को एंट्री देनी चाहिए। इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट कोई भी उस टाइम में नहीं था, खासकर ब्रिटिशर्स तो थे ही नहीं, दैट दे वर डिमांडिंग दैट इंडियन शुड बी देयर इन इंपीरियल जुडिशरी, सो इट इज अ ब्लंडर। देन टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। आपको लगता है क्या कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद सिर्फ 6 या 7 साल में दे विल डिमांड इंडिपेंडेंस? नहीं, बेसिकली इवन इट वाज नॉट द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो इंडियन इंडिपेंडेंस ये भी नहीं होगा। टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं, दे वोंट डिमांड एमिनेंट इंडियंस टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। व्हाई? दे हैड देयर ओन स्टेटस एंड देयर ओन प्रिविलेज, देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो डी भी गलत हो जाएगा। मतलब अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन के बारे में पता नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू गो बाय एलिमिनेशन मेथड, स्टिल यू कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। विलियम वेडरबर्न, he was the president of Indian National Congress in 2 years, in the year 1889 and in the year 1910. Remember, William Wedderburn was the president of Indian National Congress in 1889 and 1910. Question number 64. Now, this is very logical question. What is the difference between compact fluorescent light and LED lamp? To produce light, CFL uses mercury vapor and phosphorus, while LED lamp uses semiconductor material. अगर ऐसा होता है, then the average lifespan of CFL is much longer than that of LED. देखिए अगर मर्क्यूरी यूज किया जाता है और फास्फोरस यूज किया जाता है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होगा। सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। CFL का लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू LED। ये कोई भी बच्चा बता सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर सेकंड गलत हो गया तो 2 and 3 चला जाएगा, 1, 2 and 3 चला गया। देन रिमेन्स द क्वेश्चन अबाउट थर्ड ऑप्शन। A CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. सही है। So 1 and 3 are the correct option. आपके जो डे टू डे यूज में जो कोई भी गैजेट आते हैं उसका बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए, उस पर सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 65। Recently, oil zapper was in the news. What is it? Oil zapper. It is an eco-friendly technology for remediation of oil sludge and oil spill. Why this question came? Because in Arabian Sea there was Chitra oil spill. Chitra ship was there. उसमें से बहुत सारा oil spill हुआ था। उसमें से सिर्फ oil ही नहीं, बहुत सारे pesticide and all these chemicals came upon the shores and we had taken step to bioremediation. So oil spill remove करने के लिए oil zapper का use किया जाता है। ऑयल चित्रा ऑयल स्पिल हुआ था बायो रेमेडिएशन के लिए, और ये जो रिसर्च किया था टेरी ने किया था, द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। टेरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, टेरी पे बहुत बार क्वेश्चन भी आए हुए, सो आई विल सजेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू गो इन डिटेल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टेरी। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। इट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू डेवलप फॉर अंडर सी एक्सप्लोरेशन, नहीं। इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाई बायोफ्यूल यील्डिंग मेज वैरायटी, नहीं। It is latest technology to control accidentally caused flames from oil wells. ये हो सकता है, लेकिन उस साल 2011 में oil zapper was in news, everywhere it was in news. That's why this is the correct answer. So that's all from my side. We'll be keep meeting it for many lectures. Thank you very much. Have a good day. Thank you.